Yes, today in this chapter, French Revolution, I will start with the meeting of a state journal and how National Assembly was formed. Yes, students, meeting of a state journal was called by King Louis XVI, and the motive of King was to levy new taxes. And last time this meeting was called by Louis XVI's father and forefather and ancestors in 1614. What this time, when this meeting was called, a state journal meeting was called upon, and Palace of Versailles was decorated, and all the representatives from different estates, like 300 from first estate, 300 from second estate, and 600 from third estate, they entered in the hall that I have discussed already with you. And voting criteria was each estate had one vote. What this time people of third estate, they came with another revolutionary ideas. So they wanted to change the voting system. They wanted that each person should be given one vote. What king rejected the proposal, and many people of third estate, they came with their applications, problems and grievances that they wanted to share with the king. But king never listened, and without any proposal, people from third estate, they came out of assembly without any decision. This was a big insult of Louis XVI. And when they came out from the palace of Versailles, near the tennis court, they gathered and they declared themselves as National Assembly. Means उन्होंने एक अपनी जिसे हम कहते हैं कि एक एसोसिएशन एक ग्रुप बनाया टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. And now, after a state general meeting, your next topic will be what do you know about National Assembly? So you have to learn about the National Assembly in detail. First of all, you will explain that after the meeting of a state journal, people of third estate, they gathered there and they took oath not to disperse, and they tried to make constitution for the country. इसका मतलब है कि जब वो स्टेट जनरल की मीटिंग के बाहर आए बिना किसी डिसीजन के, तो पैलेस ऑफ वर्साई के बाहर एक टेनिस कोर्ट था, वो वहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने ऑथ ली कि वो तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक वो अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते. And slowly after slowly many people they joined, and 20th जून को उनकी एक लार्ज गैदरिंग जो थी वो इकट्ठी हुई. एंड उन्होंने एक नेशनल असेंबली, एक किंग ने उसको लीगल स्टेटस नहीं दिया था, लेकिन बट दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली. और इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स, नेशनल असेंबली के इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे कौन थे? मिराबियो, मिराबियो. वैसे तो मिराबियो जो थे वो नॉबल्स यानी कि सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे, बट इनके माइंड में थर्ड एस्टेट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था. सो दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड थर्ड एस्टेट पीपल. इसके अलावा एक और पर्सन थे, उनका नाम था एबेसी. ही बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट. वो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करते थे. Still, they were called the leaders of National Assembly. They supported the National Assembly. They supported the third estate. And ABCA, इन्होंने एक बहुत important pamphlet लिखा है, What is an third estate, जिसमें उन्होंने थर्ड एस्टेट के बारे में लिखा है, उनकी एस्पिरेशंस के बारे में लिखा है. तो इन दोनों को लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली भी कहा गया. इन्होंने थर्ड एस्टेट को काफी लीड किया एंड दे डिलीवर्ड मैनी पावरफुल स्पीचेस, ताकि थर्ड एस्टेट के लोग जो हैं वो अपने राइट्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें. ठीक है. एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक नेशनल असेंबली के जो लोग थे, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, वो पॉलिटिकली अवेयर हुए कि उनको अपनी कंट्री में कौन कौन से राइट्स चाहिए. अल्टीमेटली देयर मेन मोटिव वाज टू अपोज द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग. वो किंग की डेस्पोटिक पावर्स को खत्म करके कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लाना चाहते हैं. एंड इन बिटवीन मैंने आपको बताया 20th जून 1789 टेनिस कोर्ट ऑथ, यानी कि जब ऑथ ली गई थी,
अब नेक्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट क्या है? 14 जुलाई 1789, यानी कि जून के बाद नेक्स्ट 1 मंथ का गैप। और 20 जून से लेकर पूरे मंथ जो है वो एक्टिविटीज होती रही। लोग सिटीज में, विलेज एरियाज में रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ आगे आते रहे। और ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि पीपल दे वर नॉट गिवन बेसिक फैसिलिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एंड गवर्नमेंट वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ हेल्प टू द पीपल। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मेनी पीपल दे रिवोल्टेड। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ कॉजेस डिस्कस किए हुए हैं। एंड 14 जुलाई 1789 Bastille Fort was stormed. Bastille Palace was stormed, in which arms and ammunition was stored. किंग की जो पावर है उसको काफी हद तक चैलेंज किया गया बाय डिस्ट्रॉइंग दिस पैलेस ऑफ बस्टाइल। एंड ये एक फोर्ट्रेस कम प्रिजन था जिसमें जो लोग उसको अपोज करते थे उनको एज अ प्रिजनर रखा जाता था। तो दैट्स व्हाई पीपल हेटेड दिस बस्टाइल फोर्ट। And we can say that on 14 July 1789, first time in the history of France, people they revolted against the king. And meantime, जब cities में पैलेस को डिमोलिश किया गया, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेज एरिया। कंट्री साइड और विलेज एरियाज। तो विलेज एरियाज में भी फार्मर्स, पीजेंट्स, दे वर फेड अप फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ जमींदार्स and they had to pay many kind of taxes to the government. City people they also participated in revolt, and in the village areas farmers and peasants they also participated in a revolt in their own way. उन्होंने कैसे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया? बाय अटैकिंग ऑन द हाउसेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। उनके एरियाज में जो लैंडलॉर्ड्स थे जो उन पे एक्सप्लॉयटेशन करते थे, या नोबल्स की जो लैंड थी, या जो स्टोर हाउसेस थे जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता था, दे अटैक्ड ऑन दोज बिल्डिंग्स विद देयर वेपन्स। अपने वेपन्स लेकर उनको अटैक किया। ठीक है। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनके पास जो भी उनके अपने एग्रीकल्चरल वेपन्स थे, उन वेपन्स के साथ उन्होंने जो है वो अटैक किया। इवन डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने उनके लैंडलॉर्ड्स जो नोबल्स थे उनको घरों पे अटैक किया और बहुत से डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जिन डॉक्यूमेंट्स में जो भी उनका मनी या जिसे हम कहते हैं जो भी उनका लेन देन का हिसाब था, दे बर्न दोस डॉक्यूमेंट्स। एंड इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि बोथ इन सिटीज एंड इन कंट्री साइड और इन विलेज एरियाज पीपल दे पार्टिसिपेटेड ऑन लार्ज स्केल। ठीक है। तो ये सारा हमने किया है स्टेट जनरल के बाद नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बारे में आपने बताना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड आफ्टर द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल when people they came out of Palace of Versailles and they gathered near the tennis court. On 20th June, they took oath that they will frame the constitution for the country. They will make rules and regulation and they will try to end the despotic powers of the king. Many leaders like Mirabeau from noble family, first ये second estate से belong करते थे, Abbasier from first estate, they also supported the people of National Assembly. Mirabeau they delivered many powerful speeches, and Abbasier he wrote a pamphlet, What is an Third Estate? And in this pamphlet he wrote in detail about the rights of Abbasiers. Then next on you can say different areas like in city, many people they revolted. People they attacked on Palace of Bastille on 14 July 1789, and in countryside many villagers, farmers, peasants, workers they attacked on the buildings of landlords and their nobles. They attacked on storehouses also जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता था, and even they burned the documents also related to money जो उनके लेन देन से related documents. And in this way people they try to you can say capture the you can say mind of those people like first estate and second estate by bringing revolutionary ideas in the society. ठीक है। और ये इस तरह से जब सोसाइटी में हुआ, सिटी में हुआ, तो किंग ही गॉट स्केयर्ड। किंग को लगा कि ये रेवोल्यूशन और स्प्रेड ना हो जाए। देन फाइनल डिसीजन क्या हुआ? किंग गेव नेशनल असेंबली एज अ लीगल रिकॉग्निशन,
यानी कि किंग ने नेशनल असेंबली को लीगल रिकॉग्निशन दी। लीगल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि किंग ने नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दी। लीगल लीगल का मतलब होता है बाय ऑर्डर, पास किया गया ऑर्डर। और इस तरह से नेशनल असेंबली के मेंबर जो थे वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ही नेशनल असेंबली ने कुछ ऑर्डर्स पास किए, इनको कहा जाता है डेक्री। ठीक है, यानी कि अब हम सारी इवेंट पढ़ेंगे 14 जुलाई के बाद। 14 जुलाई के बाद 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किया? नंबर 1, एबॉलिश फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म वाज एबॉलिश। क्या था बच्चे फ्यूडलिज्म? लुई 16 के टाइम पीरियड में फ्यूडलिज्म ये वो सिस्टम था जिसमें किंग कुछ फ्यूडम्स को अपॉइंट करते थे। ठीक है, सम फ्यूडम्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू कलेक्ट द टैक्सेस, कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। ये क्यों एक्सप्लॉइटेड था? बिकॉज ये फ्यूडम जो थे वो पुअर पीपल या फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। दैट्स व्हाई इस सिस्टम को एबॉलिश किया गया 4 अगस्त 1789 एंड पीपल बिकेम वेरी हैप्पी। इस नए ऑर्डर को कहा गया डेक्री। डेक्री मींस ऑर्डर, न्यू ऑर्डर। सबसे पहले नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को ये ऑर्डर पास किया और उसके अकॉर्डिंग फ्यूडल सिस्टम जो है, ऑब्लिगेशन जो था टैक्सेशन सिस्टम का, उसको रिमूव कर। देन सेकंड चेंज किया गया क्लर्जी पीपल। फर्स्ट स्टेट जो थी क्लर्जी पीपल, उनके पास अनलिमिटेड लैंड, दैट लैंड वाज टेकन बाय देम एंड उनके जो प्रिविलेजेस थे उनको खत्म कर दिया। ठीक है, देन सेकंड जो 4 अगस्त 1789 का जो ऑर्डर था, इसमें नेशनल असेंबली ने कौन सा चेंज इंट्रोड्यूस किया? दैट लैंड फ्रॉम चर्च वाज टेकन, और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। एंड प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है, ठीक है, उनको खत्म कर दिया। जितने भी चर्च पीपल थे या नॉबल्स है जिनको प्रिविलेजेस मिले गए थे उनको खत्म कर दिया। देन आपको पता है ये जो जितना लैंड जो है वो चर्च पीपल से वापस ली गई, और इसके पास गवर्नमेंट के पास कितनी मनी कलेक्ट हुई? मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी लैंड जो थी वो चर्च पीपल और नॉबल्स के अंडर, अनलिमिटेड लैंड जो थी उनसे वापस ली गई। एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम था, टिच था, टाइल था, उसको खत्म कर दिया गया। यानी कि पहले जो सारा बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि थर्ड एस्टेट को रिलैक्सेशन मिली इस रेवोल्यूशन के बाद, और नेशनल असेंबली जो है वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हुई। और आपको पता है 1789 से लेकर 1791 ये पूरा टाइम पीरियड लगा नेशनल असेंबली को कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, और इस तरह से कंट्री ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791। इट टुक approximately 2 years, 89 to 90, 90 to 91 for National Assembly to make constitution. और in the meantime उससे पहले 4 अगस्त 1789 में कुछ नए ऑर्डर्स पास करके टैक्सेशन सिस्टम को खत्म कर दिया ताकि किंग को लोग सपोर्ट करें, और इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में नेशनल असेंबली ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी। ठीक है, तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से फीचर्स थे। आपको सबसे पहले नेशनल असेंबली का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने पॉइंट्स अच्छी तरह से याद करने हैं कि नेशनल असेंबली जो थी, आई एम अगेन रिपीटिंग नेशनल असेंबली, एंड इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस आल्सो। ठीक है, आपके जो नेम के अकॉर्डिंग है आपकी अटेंडेंस जो है आई एम गोइंग टू टेक, वेट फॉर 1 मिनट।
Yes. Now some students they want to ask. Yes, beta. Anji, Ansha, keep your mic on. Anji, keep your mic on. Ansha, you want to ask? Yes. Keep your mic on, beta. Jia and Janvi. मैम Yes. मैम feudalism के बारे में फिर से explain कर दो. Okay, beta. Feudalism. What's a feudalism? That system was introduced before 1789 in France. ये word जो है feudalism बना है feudums. feudams. Who were feudums? Feudums were appointed by the king to collect taxes. ठीक है? And in that time, at that time, these feudums they exploited common people, poor people, farmers. कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? जितना टैक्स उनको जो है वो फिक्स किया गया था वो टैक्स से ज्यादा, क्योंकि उस टाइम में कॉमन पीपल को टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं, सो उनसे टैक्स जितना उनको फिक्स किया जाता था उससे ज्यादा लिया जाता था, और ये बाकी जो एक्स्ट्रा था ये फ्यूडल्स की पॉकेट में जाता था, जो फ्यूडम्स है उनकी पॉकेट में जाता था। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फ्यूडलिज्म एट दैट टाइम वाज नॉट अ गुड सिस्टम फॉर कॉमन पीपल, एंड ऑन 4th August 1789 the system was abolished. Abolished means removed, and new kind of system was introduced. और ये जो नया सिस्टम था इसको बनाने में भी टाइम था, क्योंकि 1789 से लेकर 1791 नेशनल असेंबली वाज बिजी इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और 1791 को जब नया कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में आया उसके अकॉर्डिंग काफी हद तक स्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया एंड नया जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया। तो ये हम आगे करेंगे कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक नेशनल असेंबली का जो टॉपिक है, स्टेट जनरल का टॉपिक है, इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर देन यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? यस, okay, if you are not asking again I am repeating because this concept of national assembly, it is it should be clear to you. Okay, national assembly, बच्चे, national assembly means the people of third estate after the state general meeting when they came out of the palace of Versailles, they were not satisfied with the king because king rejected the proposal of voting criteria. Now these people having revolutionary ideas in their mind, so that's why they gathered in front of the palace of Versailles in a tennis court, and they declared themselves as National Assembly. They formed a group, उन्होंने group बनाया, ठीक है? And on 20th June they took oath, यानी कि उन्होंने oath ली कि वो तब तक नहीं वहां से जाएंगे जब तक वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ठीक है? And during this time, many people they joined them, like Mirabeau, Abbé. He were, you can say, he belonged to first and second estate. Mirabeau belonged to nobles, and Abbé belonged to first estate. And Abbé also wrote pamphlet, "What is an third estate," in which he explained about the rights of third estate, condition of third estate. And during these activities, many people in the village areas also attacked on the houses of or storehouses of their landlords. They burned the documents also. And in the city, Paris की बात की जाए तो in the city of Paris, people they attacked palace of Versailles. ठीक है? तो इसके बाद ये जून का मंथ, उसके बाद जुलाई का मंथ, और after that when king came to know about all these activities, then king he gave permission to form the constitution to national assembly. इसका मतलब है उसने national assembly को एक legal असेंबली का स्टेटस दिया। एंड सबसे पहले असेंबली ने जो नया ऑर्डर पास किया इसको कहते हैं डेक्री। डेक्री का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। क्या था ये नया ऑर्डर? 4th अगस्त यानी कि जुलाई के बाद नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ नया ऑर्डर जो था, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश, स्टेट सिस्टम वाज अबॉलिश, जो मैंने आपको सोसाइटी का स्टेट सिस्टम करवाया था, ठीक है, दैट वाज अबॉलिश, खत्म कर दिया उसको। देन कुछ टैक्सेस जो थे like pig tha, tile tha, these taxes were also abolished, and relaxation was given to the people of third estate.
and after that the property of church was taken back by the government. यानी कि चर्च के पास जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी that was taken, और जितनी प्रॉपर्टी चर्च से ली गई अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन लिबरे जो है वो गवर्नमेंट के पास मनी करती है. देन क्लर्जी पीपल जो थे उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे, वो उनसे वापस ले लिए गए, जो उनको प्रिविलेजेस दिए गए थे वो वापस ले लिए गए. एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एक पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेशनल असेंबली जो थी दैट became busy in the making constitution for the country. And 1789 से लेकर 1791 it took 2 years to make the constitution for the country. और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया, this constitution gave many relaxations to third estate but not 100%. यानी कि अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, some people they were not satisfied with this new constitution also, क्योंकि इसमें भी बहुत से ड्रॉबैक्स. तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791. बच्चे अभी कोई भी डाउट है किसी को, यू कैन आस्क अबाउट दिस टॉपिक नेशनल असेंबली. एनी डाउट? नाउ आई विल डिस्कस विद यू फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय नेशनल असेंबली इन 1791. ठीक है. Now I can see 43 students. Wait for 1 minute. I don't know why students of 9D they are joining. Today is your period of history civics, and D section your period of geography. Yes, any doubt to anyone? Okay, bache. So now I will start new constitution of 1791. Okay. And according to this new constitution, citizens were divided into 2 parts: active citizens and passive citizens. First of all, I am explaining this new constitution in a table form. Okay, citizens in the country were divided into 2 parts: active citizens and passive citizens. Active citizens किनको कहा गया? 25 years above male. इसका मतलब क्या है? Voting rights were given only to the male above 25 years. ठीक है, यानी कि 25 ईयर से ज्यादा जिनकी एज थी, जो मेल कैंडिडेट थे, उनको सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स कहा गया. एंड पैसिव किनको कहा गया? विमेन, चिल्ड्रन एंड बिलो 25 मेल, यानी कि जिनकी एज 25 से कम थी. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्टिव सिटीजन्स, all the male above the age of 25 years, they were called active citizens. Passive citizens किनको कहा गया? All the women, children and male below the age of 25 years. ठीक है, इनको कहा गया passive citizens. Active citizens इसका मतलब क्या है कि जो मेल कैंडिडेट थे जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा थी, एंड उनको भी एक्टिव कहा गया जो
टैक्स पे करते थे, ठीक है। टैक्स पेयर मीन्स टैक्स पे करते थे, ठीक है। और इसके बाद एक्टिव सिटीजन जो थे वो आगे वोट कर सकते थे इलेक्टर्स, यानी कि ये इनडायरेक्ट सिस्टम था वोटिंग, इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट क्यों? एक्टिव सिटीजन सीधा जो है पार्लियामेंट मेंबर्स को वोटिंग नहीं कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन पहले इनको वोट करते थे इलेक्टर्स, और इलेक्टर्स बनने के लिए एक पर्सन को हाईएस्ट टैक्स पेयर होना बहुत जरूरी थी कि वो टैक्स पे ज्यादा करता हो। ये टैक्स उनकी इनकम के अकॉर्डिंग लगाया जाता था, ठीक है। इसके बाद इलेक्टर्स कुड वोट फॉर नेशनल असेंबली, यानी कि 1791 के बाद जब इलेक्शंस करवाए गए तो ये नए मेंबर्स, पुरानी वाली नेशनल असेंबली नहीं, अब ये नए मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। और फर्स्ट टाइम जब इनके इलेक्शन हुए तो कितने थे? 745 मेंबर्स वर अपॉइंटेड एंड इनको कहा गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग, यानी कि इनको नेशनल असेंबली को काम दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद ये जो थे लेजिस्लेचर, ठीक है, इसके अलावा किंग एंड उनके नॉबल्स, ठीक है, ये थे एग्जीक्यूटिव, यानी कि नेशनल असेंबली जो थी वो नॉबल्स पे कंट्रोल करती थी एंड नॉबल्स भी नेशनल असेंबली पे कंट्रोल कर सकती थी। कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग का काम नेशनल असेंबली को दिया गया एंड किंग एंड नॉबल्स आल्सो कंट्रोल ऑन नेशनल असेंबली। इसके अलावा किंग को एक और पावर दी गई, दैट वाज कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कि किसी भी डिसीजन को चेंज करने का राइट दिया गया, यानी कि नेशनल असेंबली के द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ के ऊपर एक स्पेशल पावर जो है वो किंग को दी गई, उस पावर को क्या कहा गया? वीटो पावर। तो ये थी एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जजेस और आल्सो अपॉइंटेड, और जजेस को इलेक्ट करने का राइट किनको दिया गया? एक्टिव सिटीजन, यानी कि एक्टिव सिटीजन जो है वो जजेस को इलेक्ट कर सकती है। बेटा हमारी कंट्री में हम जजेस को इलेक्ट नहीं कर सकते, हमारी कंट्री में जजेस के इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन इस नेशनल असेंबली का जो सिस्टम था इसमें एक्टिव सिटीजन को राइट दिया गया दैट दे कैन इलेक्ट जजेस आल्सो। इस तरह से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फिलोसफर्स की बुक्स थी, स्पिरिट ऑफ लॉ, या बहुत से फिलोसफर जो चाहते थे कि इनकी पावर को डिवाइड कर दिया गया, एक्चुअली इन पावर्स को डिवाइड किया गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, according to this new National Assembly's constitution passed in 1791, citizens were divided into two parts, active citizens and passive citizens. एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स जिनकी एज 25 इयर्स या उनसे ज्यादा थी, ये जो टैक्स पे करते थे। पैसिव सिटीजन्स विमेन, चिल्ड्रन एंड बिलो द एज ऑफ 25 इयर्स मेल। अब वोटिंग का राइट किसको था? पैसिव को नहीं था। ओनली एक्टिव सिटीजन्स दे वर गिवन राइट टू वोट। अब इस इलेक्शंस में, यानी कि 1791 के बाद जो इलेक्शंस करवाए गए, उन इलेक्शंस में एक्टिव सिटीजन्स दे कुड वोट फॉर इलेक्टर्स। इलेक्टर्स का मतलब होता है जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, जो टैक्स पे करते थे। एंड आगे इलेक्टर्स थे वो किसको अपॉइंट कर सकते, किसको इलेक्ट कर सकते थे? नेशनल असेंबली। यानी कि इनडायरेक्टली एक्टिव सिटीजन्स कैन वोट फॉर इलेक्टर्स एंड इलेक्टर्स कुड वोट फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। और फर्स्ट टाइम जब ये नेशनल असेंबली बनी, इसके कितने मेंबर्स थे? 745।
तो ये पुरानी नेशनल असेंबली नहीं, अब इलेक्शन जब करवाए गए तो नई नेशनल असेंबली जो है उसमें इलेक्शन करवाए गए एंड इसको कहा गया लेजिस्लेचर। दूसरी तरफ किंग और उनके जो नॉबल्स थे उनको कहा गया एग्जीक्यूटिव। Nobles could also control on National Assembly and National Assembly could control on nobles. Then king had a special power called veto power. Veto का मतलब होता है right to change any decision passed by National Assembly. किसी भी law को pass करने का अगर special decision, एक special right रखा है उनके पास. Then active citizen को एक और right दिया गया, एक vote for judges. ठीक है, और इस सिस्टम को कहा गया न्यू सिस्टम ऑफ नेशनल असेंबली। एंड अब कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, मोनार्की सिस्टम अभी भी था, किंग था, नॉबल्स थे एंड इस सिस्टम को क्या कहा गया, नाउ फ्रांस जो पहले लुई 16 के टाइम पे मोनार्की सिस्टम था, अब नया सिस्टम जो है अडॉप्ट किया, इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Constitutional monarchy. Constitutional monarchy means constitution was there. Monarchy system means the rule of king was there. What according to new constitution, parliament was declared as national assembly. नई parliament जो बनी उसको क्या कहा गया, national assembly. Clear बेटा?